Hello everyone, in this video we will continue exercise 10.3 chapter 10 vector algebra class 12. So in this video we will do question number 10 to 18. So let's begin with the question number 10. You can see here the question number 10 is if the vector A, you can see here vector A is 2i plus 2j plus 3k and we have given vector B as minus I plus 2j plus k and vector C as 3i plus j are such that a plus lambda time b is perpendicular to c, then find the value of b. हमें क्या करना है, lambda की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. So given vectors are a, you can see here 2i plus 2j plus 3k and vector b is minus I plus 2j plus k and c is 3i plus j. So now we are given a plus lambda time is perpendicular to c. So first of all we will find a plus lambda time b. So write here vector a, that is 2i plus 2j plus 3k and plus lambda time of vector b, that is minus I plus 2j plus k. So आप इनको सॉल्व कर लीजिए, हमें क्या मिल जाता है देखते हैं आप यहाँ. So क्या मिल जाता है हमें 2i plus 2j plus 3k minus lambda time I plus 2 lambda times j and plus lambda times of k. So now we have a plus lambda time b as 2 minus lambda time I plus 2 times of plus 2 plus 2 times of lambda into j and 3 plus lambda into k. So now the given vector c is 3i plus j equals to 3i plus j plus 0k. So now as we have already given that a plus lambda time b is perpendicular to c, so their dot product will be 0. So इनका डॉट प्रोडक्ट हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे. सो a plus lambda time b dot c vector will be equals to 0. So that is the product of coefficient of I plus product of coefficient of j plus product of coefficient of k will be equals to 0. So आप देखिए a plus lambda time b के जो i j और k के कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए i j और k के कोफिशिएंट जो कि c वेक्टर के हैं. सो हमें क्या मिल जाता है देखते हैं आप. तो हमें मिल जाता है 2 minus lambda into 3, 2 plus 2 lambda into 1 and 3 plus lambda into 0. So अब देखिए हम सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या मिल जाता है 6 minus 3 lambda. So here 2 plus 2 lambda and minus 0. So this will be minus lambda plus 8 equals to 0 or lambda equals to 8. So thus we can say lambda equals to 8. This is the required value of lambda, that is 8. So now proceed for question number 11. So you can see in the question number 11 we are to show that we are to prove that magnitude of vector a into b plus magnitude of vector b into a is perpendicular to the magnitude of vector a into b minus magnitude of vector b into a for any non-zero vector a and b. मीन्स हमें गिवन है कि a और b नॉन जीरो वेक्टर्स है और हमें प्रूव करना कि ये वेक्टर जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है इस वेक्टर के. सो हम एज्यूम कर लेते हैं, नोटेशन दे देते हैं, लेट सी वेक्टर इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड इंटू b प्लस b मैग्नीट्यूड इंटू a एंड मैग्नीट्यूड a को हमने नोटेशन दे दिया l एंड मैग्नीट्यूड b को नोटेशन दे दिया हमने m. सो वी हैव c एज l इंटू b वैक्टर प्लस m इंटू b वैक्टर. सो मेंशन कर दिया कि l इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड a है एंड m इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ b है. सो एंड अब देखिए हमने d एज्यूम कर लिया इस वेक्टर को. सो इस वेक्टर में वेक्टर d एज्यूम कर लिया. सो दिस इज d वेक्टर. सो a मैग्नीट्यूड इंटू b माइनस b मैग्नीट्यूड इंटू a. सो हमने a मैग्नीट्यूड एज्यूम किया हुआ l, सो दिस विल बी एल बी एंड माइनस b को हमने एज्यूम किया m, सो दिस विल बी माइनस ऑफ एम ए. सो नाउ हमें इन दोनों का प्रोडक्ट करना है. इफ द डॉट प्रोडक्ट बिकम्स 0 देन वी कैन से these two given vectors are perpendicular to each other. If dot vector is not equals to 0 then we can say these vectors are not perpendicular to each other. So now c dot d हम फाइंड आउट कर लेते हैं. c dot d इनका डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं. सो हमें क्या मिल जाता है, c dot d आप देख सकते हैं स्क्रीन पर. हमें c dot मिल जाता है एल बी प्लस m इंटू वैक्टर a. जैसा कि आप देख सकते हैं डॉट प्रोडक्ट करना है किसके साथ, l इंटू बी वैक्टर माइनस m इंटू a वैक्टर. सो आप देखिए सॉल्व कीजिए इसको आप इन टर्म्स को. इस टर्म को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे देन l इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, देन सिमिलरली इसको इसके साथ करेंगे, देन इसके साथ करेंगे. सो आपको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाता है देख सकते हैं स्क्रीन पर आप. हमें मिल जाता है एल स्क्वायर इंटू बी डॉट बी माइनस एल इंटू एम इंटू बी डॉट ए देन एल एम इंटू एन एल इंटू एम इंटू ए डॉट बी वैक्टर देन माइनस ऑफ एम स्क्वायर इंटू ए डॉट ए वैक्टर. सो नाउ देखिए बी डॉट बी क्या होता है, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है. a dot b and b dot a are commutative, so that we can write it as minus lm into a dot b, and we have already lm into a dot b. So this positive and negative term will be cancelled and minus of m square into a magnitude square. So now this becomes l square into b magnitude square minus of m square into a magnitude square. So now as we know
एल इक्वल्स टू क्या है हमारे पास ए मैग्नीट्यूड है एंड एम इक्वल्स टू क्या है बी मैग्नीट्यूड है. सो दैट हम कह सकते हैं सी डॉट डी वेक्टर विल बी इक्वल्स टू ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर. आप देखिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए एल की. सो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर एंड हियर इट विल बी माइनस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर into a magnitude square. So these two terms will be cancelled and here we will get 0. So c dot d will be 0. So we can say vector c and d are perpendicular to each other. So these two given vectors are perpendicular to each other. So now question number 12 you can see on the screen. We have given a dot a vector that is 0 and a dot b as 0. Then what can be concluded about the vector b? देखिए हमें ए डॉट ए 0 गिवन है, ए डॉट बी भी 0 गिवन है. देन हमें बताना है कि हम वेक्टर बी के बारे में बताना कि वेक्टर बी क्या हो सकता है. सो देखिए हमें गिवन क्या है, ए डॉट ए 0 है. मीन्स क्या हम कह सकते हैं ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर क्या होगा. देखिए ए डॉट ए क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर. सो ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर विल बी 0. मीन्स क्या हुआ, ए मैग्नीट्यूड क्या है 0 है. सब ए मैग्नीट्यूड 0 होने का मतलब आप समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि मीन्स हमें वेक्टर जो गिवन ए है वही 0 है. सो हम कह सकते हैं कि गिवन वेक्टर ए इज ए 0 वेक्टर. सो नाउ हमें ये भी गिवन है कि ए डॉट बी क्या है 0 है. सो दैट हम राइट करेंगे ए डॉट बी को आप एक्सपेंड कीजिए क्या होता है ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0. सो बट हमें पता है कि बी ए मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास 0 है. सो दैट 0 इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 0 दैट इज गिवन. सो 0 इक्वल्स टू 0 दैट इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ वेक्टर बी. वेक्टर बी की कोई भी वैल्यू हो सकती है बट हमें पता है 0 इक्वल्स टू 0 होता है. दिस रिलेशन इज ट्रू. सो वी कैन से B can be any vector. B क्या है, कोई भी वेक्टर हो सकता है. This is all about question number 12. So now proceed for question number 13. जैसा कि आप देख सकते हैं, if vector A, B and C are the unit vectors such that A plus B plus C equals to 0, find the value of A dot B plus B dot C plus C dot A. So as A, B, C are the unit vectors हमें पहले से given है. So that इन तीनों vectors का magnitude कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. So that हम कह सकते हैं vector A magnitude equals to vector B magnitude equals to vector C magnitude equals to 1. So now also we have given that A plus B plus C equals to 0. So now on squaring both side we will get, हमें squaring करने पे क्या मिल जाएगा, vector A plus B plus C whole square equals to 0. जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें ये मिल जाता है. वो आपने प्रीवियस क्लास में एक रिलेशन पढ़ा था 9th क्लास में. ये A प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. सो आप वही आइडेंटिटी यूज़ करते हुए आप देख सकते हैं, ओपन करेंगे इसको क्या बन जाएगा, ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए इक्वल्स टू 0. सो देखिए ए वेक्टर स्क्वायर जो बनता है उसको हम क्या राइट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर. दिस विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर विल बी मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर. सो प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर a dot b plus b dot c plus c dot a equals to 0. So now as we already given that a, b and c are unit vectors, so therefore a magnitude will be 1, b magnitude will be 1 and c magnitude will be 1. So put the value here, 1 plus 1 plus 1 plus twice of vector a dot b plus b dot c plus c dot a equals to 0. So now this will be 3 and transpose to the right hand side become negative, so this will be minus 3 here. So now a dot b plus b dot c plus c dot a will be minus 3 by 2. So this is the required value of a dot b plus b dot c plus c dot a. So now proceed for question number 14. That is, if either vector a equals to 0 or b equals to 0, then a dot b equals to 0. But the converse need not be true. जस्टिफाई यू आंसर विद एग्जाम्पल्स. देखिए हमें क्या कहा जा रहा है कि वेक्टर ए 0 है और बी 0 है, देन हम कह सकते हैं ए डॉट बी 0 है. बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू. देखिए कन्वर्स का मीन क्या है कि हमें एक वेक्टर ए ऐसा लेना है जो नॉन जीरो हो, कि नॉन जीरो हो, बी भी नॉन जीरो लेंगे लेकिन इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाए फिर भी 0 हो जाए. ऐसे वेक्टर हमें एग्जाम्पल लेके जस्टिफाई करना है इस स्टेटमेंट को. देन केस 1 देखिए, सॉल्यूशन पार्ट में आप देख सकते हैं. इन केस 1 वी हैव गिवन वेक्टर ए एज 0, सो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ए विल बी 0. और देखिए अगर वेक्टर ए हमें 0 गिवन है देन इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, वो भी 0 हो जाएगा. सो दैट हम देखिए अप्लाई कीजिए ए डॉट बी. सो दिस विल बी ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा एंड हियर वी हैव ए वेक्टर एज 0 वेक्टर, सो इट्स मैग्नीट्यूड विल बी 0. सो हम पुट कर सकते हैं ए मैग्नीट्यूड एज 0, सो इंटू बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा. सो दिस होल स्टेटमेंट विल बी 0. ये सारी स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. सो ए डॉट बी विल बी 0. सो केस 2 देखिए हमारे पास क्या है, इस वेक्टर बी इक्वल्स टू 0 है, देन बी मैग्नीट्यूड विल बी 0. सो आप देख सकते हैं
कि ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा होता है। सो हमने ए मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा को सेपरेट कर लिया एंड बी मैग्नीट्यूड हमने मल्टीप्लाई में कर दिया। सो देखिए बी मैग्नीट्यूड कितना हमारे पास 0 है, सो दैट आप राइट कर सकते हैं ए मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा इंटू 0 एंड दिस विल बी 0। सो दैट इज हम कह सकते हैं ए डॉट बी हमारे पास क्या है 0 मिल चुका है, जो कि गिवन स्टेटमेंट थी। अब इसको कन्वर्स को हम प्रूव करते हैं, बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। लेट अस जस्टिफाइड विद एन एग्जाम्पल। देखिए इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि हम कहेंगे ए भी नॉन जीरो है, बी भी नॉन जीरो है, बट स्टिल ए डॉट बी इज 0। सो इसको प्रूव करने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमने एक एग्जाम्पल लिया, वेक्टर ए एज आई प्लस जे प्लस के, सो दैट देखिए इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है। सो हमारे पास एक्स 1 है, वाई भी 1 है और जेड भी 1 है। सो दैट दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, so that this will be 3. So under 3 that is non-zero. So हमने a मैग्नीट्यूड निकाला, that is non-zero. Similarly आप देख सकते हैं, अगर देखिए a मैग्नीट्यूड non-zero है मीन्स वेक्टर a भी non-zero होगा। So now let another vector that is b, that is I plus j minus 2k. इस प्रकार से आप डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। सो b मैग्नीट्यूड विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 स्क्वायर। So this will be 1 plus 1 plus 4, that is root 6, that is also non-zero. अब देखिए b मैग्नीट्यूड non-zero है मीन्स b भी non-zero होगा, so b is non-zero vector. So but अब हम देखिए a डॉट b फाइंड आउट करते हैं और हम क्या देखते हैं। So now a डॉट b, देखिए a डॉट b सॉल्व करते हैं। So I plus j plus k डॉट I plus j minus 2k. So we will get 1 into 1 plus 1 into 1 plus 1 into minus 2. सो देखिए हमें क्या मिल जाता है 1 plus 1 minus 2 दैट इज 0। सो देखिए हमारे पास ए भी नॉन जीरो था, बी भी नॉन जीरो था, बट स्टिल हमारे पास क्या है हेयर ए डॉट बी इक्वल्स टू 0, यहाँ इक्वल्स का साइन आएगा, कीप इन माइंड। सो ए डॉट बी इज 0 बट नाइदर ए 0 नॉर बी 0, सो कन्वर्स इज नॉट ट्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 14। यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 15। If the vertices A, B and C of the triangle ABC are 1, 2, 3 and then coordinates, another जो coordinates of point B है वो क्या हमारे पास -1, 0, 0 and 0, 1, 2. So these are the coordinates of vertices A, B and C respectively. Then find that angle ABC. हमें angle ABC find out करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। सो ये एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपको वेक्टर B A का पोजिशन वेक्टर चाहिए और उसी से BC का भी वेक्टर चाहिए। सो गिवन vertices A, B, C of the triangle ABC are, A के हमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 2, 3 and B's coordinates are -1, 0, 0 and C's coordinates are 0, 1, 2 respectively, and we have given triangle ABC here. So position vector of A will be OA, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर हमें क्या मिल जाएगा OA, so that is 1, 2, 3, so हम राइट करेंगे पोजिशन वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में। So this will be I plus 2j plus 3k and position vector of B that is OB, here it is -1, 0, 0, सो हम कंपोनेंट राइट करेंगे, वेक्टर कंपोनेंट राइट करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है -I plus 0j plus 0k. Now the position vector of point C that is OC will be 0, 1, 2, so that will be 0I plus 1j plus 2k. So now here angle ABC is the angle between the vectors BA and BC, so we will find the angle by using the position vector. First of all find the position vector of BA, so that is vector BA will be position vector of terminal point that is A and minus position vector of initial point that is B. So हमने position vector of A पुट कर दिया है और here पुट कर दिया हमने position vector of B. After simplifying you will get BA as 2I plus 2j plus 3k. Give it equation number 1. So now position vector of BC that is position vector of point C that is terminal point minus position vector of point B that is initial point. So that is OC minus OB we can say. So OC हमने फाइंड आउट किया हुआ पहले से ही, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज 0I plus j plus 2k and OB is -j plus 0j plus 0k. So after simplifying you will get BC as I plus j plus 2k. So give it equation number 2. So as we know that हम जानते हैं क्या होता है cos theta क्या होता है A dot B upon A magnitude into B magnitude. So now put all the values here. We already given here vector A is BA and vector B is BC. So BA dot BC upon BA magnitude into BC magnitude and here it will be cos of angle ABC जो कि हमें फाइंड आउट करना है। सो वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर BA एंड BC की और आप देखते हैं I के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे J के कोफिशिएंट एंड K के कोफिशिएंट्स को। एज यू नो दैट व्हेन I डॉट J becomes 0, J डॉट K into becomes 0. सो I डॉट क्या होता है I डॉट I 1 होता है, J डॉट J 1 होता है एंड K डॉट K 1 होता है। सो हम डॉट प्रोडक्ट में ध्यान रखेंगे कि हमें क्या करना होता है I के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने होते हैं, J के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने होते हैं और K के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई करने होते हैं और उन सबको ऐड करना होता है डॉट प्रोडक्ट में।
सो नाउ बी ए मैग्नीट्यूड विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो हमें देखिए आप देख सकते हैं एक्स हमारे पास 2 है, वाई हमारे पास 2 है और जेड हमारे पास 3 है। सो 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एंड हेड विल बी 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। सो आप इनको सिंप्लीफाई कर लीजिए और आपको क्या मिल जाता है आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। So here it will be 2 into 1, 2 into 1 and 3 into 2, and here it is 2 square becomes 4, 2 square become 4, 3 square become 9. Again here 1 square become 1, 1 square become 1 and 2 square becomes 4. So 2 into 1 becomes 2, 2 into 1 becomes 2 and 3 into 2 becomes 6. So here 9 plus 4, 13 plus 4, 17 becomes, and this will be root 6. So आप देख सकते हैं 6 plus 4 becomes 10 and here it is root 17 into root 6. सो देखिए दोनों ही प्राइम नंबर्स हम कह सकते हैं क्योंकि इनके बीच 6 इज कंपोजिट नंबर बट स्टिल देयर इज नो कॉमन फैक्टर बिटवीन 6 and 17. सो वी विल मल्टीप्लाई हियर. सो दिस विल बी रूट ऑफ 102. सो आप जानते हैं रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है हमारे पास. रूट ए इंटू रूट बी होता है रूट ऑफ ए बी. सो हम इन टू टर्म्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. So this will be under root of 102. So now this cos will be transposed to the right hand side, become cos inverse. So angle ABC will be cos inverse 10 upon under root 102. So this is the required angle ABC. So now proceed for the question number 16. That is, show that the points A127, B263 and C310 and -1 are collinear. हमें प्रूव करना है कि these 3 points are collinear, means एक ही लाइन पर लाई करते हैं. So now given points are A127, B263 and C310 -1. So now we will find the position vector of point A, that is OA. So देखिए हमें स्केलर कंपोनेंट गिवन था, वेक्टर कंपोनेंट की फॉर्म में राइट कर लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल. सो दिस विल बी I + 2j + 7k. एंड सिमिलरली आप सेकंड देखते हैं OB देखते हैं 2, 6 और 3 आपको स्केलर कंपोनेंट गिवन है. सो दैट वेक्टर कंपोनेंट विल बी 2I + 6j + 3k. एंड सिमिलरली फॉर द पॉइंट C, that is OC, will be 3, 10 and -1. So the position vector will be 3I + 10j - k in the vector component form. So हमने A, B और C के कंपोनेंट जो पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं. सो अब आप देखिए क्या हमें कोलिनियर प्रूव करने के लिए ए बी साइड फाइंड आउट करनी होगी, ए बी का पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट करना होगा, बी सी का और ए सी का. सो आप देख सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम फाइंड आउट करते हैं ए बी का पोजिशन वेक्टर. जैसा कि आप देख सकते हैं पोजिशन वेक्टर ऑफ ए बी विल बी पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट इज position vector of final point minus position vector of initial point. So that is OB minus OA. So अभी हमने फाइंड आउट किया हुआ था, OA में फाइंड आउट किया हमने, गिवन है ऑलरेडी गिवन है ये वैल्यूज. सो दैट इनको सिंप्लीफाई करने पर हमें क्या मिल जाता है I + 4j - 4k. सिमिलरली आप BC का पोजिशन वेक्टर फाइंड आउट कर लेते हैं, दैट इज OC - OB करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है I + 4j - 4k. देखिए दोनों सेम है. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए आप कह सकते हैं, देखिए इसका मतलब क्या, बी इनका कॉमन पॉइंट है, हम कह सकते हैं बी इनका मिड पॉइंट है और ये पॉइंट ए बी सी क्या है, कोलिनियर है. क्योंकि देखिए I + 4j - 4k एंड I + 4j - 4k. सो बी क्या इनका कॉमन पॉइंट है और बी मिड पॉइंट होगा. सो हम कह सकते हैं ए बी सी आर कोलिनियर. बट देखिए हमने अनदर मेथड से हमने किया कुछ नहीं है, देख सकते हैं ए सी क्या है हमारे पास. अब ए सी भी फाइंड आउट कर लीजिए. ए सी कितना मिलता है हमें, पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी माइनस पोजिशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, दैट इज OC - OA. और इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें क्या मिला, ट्वाइस ऑफ I + 4j - 4k, दैट इज द ट्वाइस ऑफ AB और यू कैन से BC. देखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय I + 4j - 4k, ये वेक्टर हमारे पास था AB और यही सेम था हमारे पास BC. सो AC वेक्टर में क्या मिला, ट्वाइस ऑफ वेक्टर AB और ट्वाइस ऑफ वेक्टर BC. सो वेक्टर AC एंड ABR आप देख सकते हैं अब यहाँ से भी कि AC एंड ABR क्या कोलिनियर है, क्योंकि ये रूल फॉलो कर रहे हैं A = m टाइम्स ऑफ वेक्टर B, A = लैम्डा टाइम ऑफ वेक्टर B, जो कि हमने बेसिक में पढ़ा था. सो हेंस वी कैन से पॉइंट ABC आर कोलिनियर. कोलिनियर क्यों है, ये देखिए हमने कहा कोलिनियर और पैरेलल भी हो सकते हैं, अभी भी हमने कहा, बट ये कोलिनियर है क्यों आप देख सकते हैं, क्योंकि वेक्टर AC और AB के अंदर हमारे पास क्या है, कॉमन पॉइंट है A. जैसे हमने मिड पॉइंट अभी डिस्कस किया उसी प्रकार से AC और AB के अंदर कॉमन पॉइंट A है, दैट इज कॉमन पॉइंट, हेंस कांट बी पैरेलल. अगर दो वेक्टर के बीच में हमारे पास कॉमन पॉइंट है देन द 2 वेक्टर्स कांट बी पैरेलल वेक्टर्स. सो हेंस AC and AB are, these are the collinear. So you can say AC and AB are collinear points, are collinear vectors, and ABC are collinear points. So now proceed for the next question, that is question number 17. So you can see, so that vectors 2I - j + k, I - 3j - 5k and 3I - 4j - 4k form the vertices of right angle triangle. हमें ये प्रूव करना है कि जो पोजिशन वेक्टर गिवन है वो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं. सो आप देख सकते हैं let A, B and C be the vertices of triangle ABC respectively. सो हमें प्रूव करना है जो वर्टिसेस, जो गिवन वर्टेक्स जो हमें दे रखे हैं, वेक्टर्स गिवन है वो क्या है,
राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल पोजीशन वेक्टर ऑफ ए जो कि हमें गिवन है, एज्यूम कर लिया हमने कि 2i माइनस जे प्लस के आपके हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। सिमिलरली पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी इज i माइनस 3j माइनस 5k एंड पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट सी दैट इज 3i माइनस 4j माइनस 4k। सो नाउ प्रोसीड for the sides, that is position vector of side AB, that is position vector of point B minus position vector of point A. So आप देखिए यहाँ पे position vector of point B हमें क्या given है, I minus 3j minus 5k and position vector of point A is 2i minus j plus k. इनका आप डिफरेंस लेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, minus I minus 2j minus 6k. सिमिलरली आप BC फाइंड आउट करते हैं, position vector of point C minus position vector of point B, that is 2i minus j plus k. And now तो पोजीशन वेक्टर ऑफ साइड ए सी दैट इज आप देख सकते हैं हमें क्या मिल जाता है, i माइनस 3j माइनस 5k। सो आप देखिए ऐड कर दीजिए इक्वेशन 1 और 2 को जो कि आपने फाइंड आउट कर ली है। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या थी, दैट इज ए बी वैक्टर था हमारे पास, और इक्वेशन 2 थी हमारे पास बी सी वैक्टर। सो आप देख सकते हैं ए बी वैक्टर हमारे पास था माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k एंड बी सी वैक्टर था हमारे पास 2i माइनस j प्लस k। इनको ऐड करने में हमें मिल जाता है i माइनस 3j माइनस 5k एंड दैट इज इक्वेशन वैक्टर ए सी। सो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल हो जाता है, ए सी वैक्टर के इक्वल हो जाता है। सो आप देख सकते हैं दो जो वेक्टर्स हैं जो सेम ऑर्डर में हैं वो किसके इक्वल आ रहा है, जो अपोजिट ऑर्डर में आ रहा है उसके इक्वल है। मीन्स ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करते हैं। सो बाय द ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन यू कैन से पॉइंट्स ए बी एंड सी आर द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। ये तीनों जो ए बी सी क्या है, ट्रायंगल ए बी सी के वर्टिसेस हैं। सो हमें क्या करना है, प्रूव अभी ट्रायंगल ए बी सी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है हमें। सो आप देख सकते हैं हमें इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना होगा, और आप कह सकते हैं ए डॉट बी भी हम कह सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट अगर जीरो आ जाता है देन हम कह सकते हैं कि वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे, ट्रायंगल ए बी सी क्या होगी, राइट एंगल ट्रायंगल होगी। सो नाउ आप देख सकते हैं ए डॉट बी सी निकाल लेते हैं पहले। सो ए बी हमारे पास है माइनस आई माइनस 2j माइनस 6k एंड बी सी हमारे पास है 2i माइनस j प्लस k। सो आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो आप देखिए एक्स जो कॉम्पोनेंट इनके करस्पॉन्डिंग आई के कोफिशिएंट उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जे के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए और के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमें सिंप्लीफाई करने में क्या मिल जाता है, माइनस 6 मिलता है जो कि जीरो के इक्वल नहीं है। सो ए बी डॉट बी सी इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स हम कह सकते हैं दीज वेक्टर्स आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये परपेंडिकुलर नहीं है। सो हम देखते हैं बी सी डॉट ए सी निकाल लेते हैं। देखिए अभी तो बी सी वैक्टर हमारे पास है 2i माइनस j प्लस k एंड जो ए सी वैक्टर है वो क्या है हमारे पास i माइनस 3j माइनस 5k। सो देखिए हमने क्या किया, इनका डॉट प्रोडक्ट किया तो हमें क्या मिल जाता है 5 माइनस 5 और इधर देखिए जीरो मिल जाता है। सो बी सी डॉट ए सी हमें मिल जाता है जीरो, मीन्स हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास बी सी वैक्टर हो क्या परपेंडिकुलर किसके है, ए सी वैक्टर के। हैंस सी इज द राइट एंगल। देखिए बी सी और ए सी में कॉमन वर्टेक्स कौन सा हमारे पास, सी सी कॉमन वर्टेक्स है। सो एंगल सी इज द राइट एंगल, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज राइट एंगल एट पॉइंट सी। जो सी ट्रायंगल ए बी सी हमारे पास क्या है, वो राइट एंगल किस पॉइंट पे है, वर्टेक्स सी पे है। हैंस ए बी सी आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 17। सो नाउ प्रोसीड फॉर क्वेश्चन नंबर 18 that is of objective type. You can see on the screen we have given if a is non-zero vector, a क्या है, एक नॉन जीरो वैक्टर है ऑफ मैग्नीट्यूड a जिसका मैग्नीट्यूड कितना है a है, एंड लेमडा इज नॉन जीरो स्केलर। लेमडा क्या एक नॉन जीरो स्केलर है, मीन्स कोई कांस्टेंट नंबर है दैट मे बी ए पॉजिटिव नेगेटिव, वो क्या पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है। देन लेमडा टाइम्स ऑफ ए वैक्टर इज ए यूनिट वैक्टर इफ। हमें प्रूव करना है कि लेमडा टाइम ऑफ ए वैक्टर ए है वो क्या एक यूनिट वैक्टर है इफ। अब हमें ऑप्शन गिवन है इफ लैम्डा इक्वल्स टू 1, इफ लैम्डा इक्वल्स टू -1 एंड ए इक्वल्स टू लैम्डा मैग्नीट्यूड एंड ए इक्वल्स टू 1 अपॉन लैम्डा मैग्नीट्यूड। सो गिवन क्या हमें ए इज नॉन जीरो वैक्टर एंड वैक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए, सो ए मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल्स टू ए। देखिए हमें गिवन है कि ए एक नॉन जीरो वैक्टर है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वैक्टर ए, सो ए मैग्नीट्यूड विल बी वैक्टर ए। सो मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ए जो है वो क्या बन जाएगा हमारे पास जो ऑलरेडी गिवन था हमें जो कि ए है। सो दैट हम राइट कर सकते हैं ए मैग्नीट्यूड विल बी ए। ऑल्सो हमें गिवन है क्या कि जो लैम्डा है वो क्या है, दैट इज नॉन जीरो। सो लैम्डा इज नॉन जीरो, सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। सो लैम्डा ए इज ए यूनिट वैक्टर। सो देखिए ये भी हमें गिवन है कि लैम्डा ए क्या एक यूनिट वैक्टर है। सो दैट देखिए आप लैम्डा ए मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा क्योंकि लैम्डा ए क्या यूनिट वैक्टर है। सो लैम्डा ए मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। सो हम राइट कर सकते हैं लैम्डा मैग्नीट्यूड इंटू ए मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू 1 एंड लैम्डा मैग्नीट्यूड इंटू ए इक्वल्स टू, क्योंकि हमें ए मैग्नीट्यूड पता है कितना है ए है। सो दैट हम राइट कर सकते हैं लैम्डा मैग्नीट्यूड इंटू ए इक्वल्स टू 1। सो ए विल बी 1 अपॉन लैम्डा मैग्नीट्यूड। सो दिस इज आप देख सकते हैं ए इक्वल्स टू में क्या मिला, 1 अपॉन लैम्डा मैग्नीट्यूड, दैट इज ऑप्शन डी। सो डी इज द करेक्ट आंसर। सो hence option D is the correct answer. This is all about exercise 10.3. So if you learn from this video then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.